Come home to the forest, where time goes slow and the breath is mellow, where thoughts find rest and calm comes to nest. Come home to the woods, to be friends with trees and listen to the breeze, to wander through trails and mend your sails. Come home to nature, when your heart is hurting or your soul needs healing, when something feels wrong or you just need a place to belong. The forest awaits. Come home, be healed. Namaste. One Utsav ki badhai. Gandhiji had said, "The earth has enough resources for our needs, but not for our greed." Indeed, the Mahatma was truly one of the world's early environmentalists in vision and practice. The importance of forest cannot be underestimated. We depend on the forest for our survival. From the air we breathe to the woods we use, trees help clean the air we breathe, filter the water we drink, and provide habitat to over 80% of the world's terrestrial biodiversity. Besides providing for a habitat for animals and livelihood for humans, forests also offer watershed protection, provide soil erosion, and mitigate climate change. Yet despite our dependence on forests, we are still allowing them to disappear. Since 1990, 178 million hectares of forest have been cleared, which is equivalent to the size of Libya, the 18th largest country in the world. And each year, around 10 million hectares of forest are being lost through conversion to agriculture and other land uses. It is imperative to look at the link between the health of nature and that of humanity and adopt more sustainable methods of production and consumption for a green and a just recovery, more so in these COVID-19 pandemic times. Forests continue to provide jobs to over 1.6 billion people, absorb harmful carbon from the atmosphere, and they are the key ingredients in 25% of all medicines. Did you ever take an aspirin? It comes from the bark of a tree. Thank you. Jai Hind. पेड़ हमारे घर के रक्षक हैं, जो हानिकारक प्रदूषणों को खींच लेते हैं और सांस लेने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शहरी वातावरण में स्वस्थ मजबूत पेड़ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पॉल्यूशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वर्षा के पानी को सोखने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक विकसित वृक्ष करीब 15,000 लीटर से ज्यादा पानी रोक सकता है। वन भूमि पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी है। वन 80% से अधिक जानवरों, पौधों और कीड़ों की स्थलीय प्रजातियों के लिए घर का काम करते हैं। वे वन आश्रित समुदायों को आश्रय, रोजगार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वानिकी की भूमिका सर्वोपरि है। We need to look at sustainable development involving forests which aim to protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land deforestation. भोजन बनाने वाले पेड़, फल, नट, जामुन और पत्ते मनुष्य और जानवरों द्वारा खपत के लिए अपनी पैदावार प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य और पौष्टिकता की गारंटी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पेशेंट जो बाहर की हरियाली और पेड़ पौधे देख और महसूस कर सकता है, वह दूसरों से जल्दी ठीक हो पाता है? सौम्य शांत जंगल से गुजरते हुए हम जो सुकून को महसूस करते हैं, उस भावना को अनदेखा करना असंभव है। पेड़ हमें सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। पेड़ तनाव और चिंता को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं और हमें प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति देते हैं। पेड़ कई दवाओं के स्रोत भी हैं। शहरों में पेड़ समग्र तापमान को 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं।
दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है। सौभाग्य से एक विकसित पेड़ प्रति वर्ष औसतन 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, जो शहरों को रहने के लिए स्वस्थ बनाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर 2017 को एक वृक्षरोपण आंदोलन करके मनाया। यह कार्यक्रम सरोजनी नायडू पार्क में आयोजित किया गया था। उस साल फ्लो ने का ये नारा गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोज बहुत सराहाया गया था। उसी वर्ष फ्लो ने महिला मालियों को ट्रेन करने का बीड़ा भी उठाया था। फ्लो सदैव वन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार और वन विभाग द्वारा योजनाबद्ध वन महोत्सव सही दिशा में एक सराहनीय कदम है। एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने से हम दूसरे राज्यों के लिए एक प्रतिमान स्थापित करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश द्वारा हमारे देश को पुनर्जीवित करने और पर्यावरण सुधारने के विशाल कार्य में अग्रणी बन सके। फिकी फ्लो लखनऊ चैप्टर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक ही दिन में राज्य में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के अपने दृष्टिकोण के लिए बधाई देना चाहता है और मुख्यमंत्री जी की दृष्टि को इतने निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग को हम अपना पूरा समर्थन देना चाहते हैं। फ्लो को कुकरेल में फ्लो वाटिका विकसित करने में वन विभाग के साथ काम करने पर हमें गर्व है। इसके साथ ही हम साधारण कौशल यानी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा देकर उनके साथ मिलकर काम करेंगे।